तो जिसने कश्मीर फाइल्स देखी है, अगर तो आपने देखा है कि वो ट्रक में लोग गए हैं, तो मैं वो था। मैं 5 साल का था जब ये हुआ है. It was very grim, obviously. At that point of time, the focus of the community, as has been mentioned in the movie, has been a lot in education. Mummy, papa, जो भी है हमारे family, सब community as a whole, even if they never had food to eat, they would always ensure कि the kids get the best school and the best education. The chips I used to design with a company, ST Microelectronics, it used to end up with the firms, with the car, within the cars of Ferraris, Mercedes and BMWs of the world. So मैं चिप डिजाइनिंग करता था जो चिप्स वहां जाके पहुंचती थी. 15 लोग बैठ के पोकर खेल रहे हैं और मुझे फोन आता है कि राहुल तेरा पीपीओ आ गया है. सारे 10 लोग कॉन्ग्रेचुलेट हो रहे हैं और मैं ऐसे यार ये क्या हो गया, ओ शिट. मतलब आई वाज लाइक ओ शिट और 10-11 लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. बस जॉब चल रही है यार. जब जॉब और करियर बस चलता है देन दिस इज हाउ द एंटायर डे लुक्स लाइक. करियर को बस चलाओ नहीं भगाओ भी. लॉग ऑन टू altuni.in. Earn more at your current job or get a new one that does. Learn from experts, work on life industry projects and get high paying job opportunities. Find the link in description. With a big round of applause, if I can welcome Rahul Zutsi on stage. Rahul, there is a very interesting beginning to your journey. I mean, it's a little grim, it's a little sad, but after a particular film that came out recently, we all were aware कि अच्छा ऐसे भी हुआ था लोगों की लाइफ में. So if you can start from that and we can build as to what your journey has been so far. Awesome. So I just like to ask audience quickly, how many of you have seen Kashmir Files? सबने देख लिया? हाँ, कुछ there are 50% of people almost who have seen Kashmir Files. So I've lived it. तो जिसने कश्मीर फाइल्स देखी है, अगर तो आपने देखा है कि वो ट्रक में लोग गए हैं, तो मैं वो था. मैं 5 साल का था जब ये हुआ है. It was very grim, obviously. At that point of time, the focus of the community, as has been mentioned in the movie, has been a lot in education. Mummy, papa, जो भी है हमारे family, सब community as a whole, even if they never had food to eat, they would always ensure कि the kids get the best school and the best education. So at that point of time, जो upbringing हुई सारी in the city called Jammu, financial stress was always a part of that upbringing. The kind of personality I am today, the kind of personality the decisions that I take today has a lot to do with the kind of stress that I saw right from the beginning of that journey, which was जब मैं 5 साल का था, to the 12th standard, to the college, to the IM, and then whatever I am taking decisions today for. What would have happened if you would have stayed back in Jammu? तो कैसी लाइफ होती फिर आपको क्या लगता है? So काफ़ी अलग तरह की लाइफ होती for sure. मैं 2 पार्ट्स में बांटूंगा इस क्वेश्चन को. What would have happened if I had stayed in Srinagar? I don't know if I would have been alive or not. But if I would have been alive and if all this would not have been happened, my family was a fairly rich family, and मैं वहाँ पे बैठ के अपना 100 करोड़ के धंधे को शायद 10,000 करोड़ के धंधे तक पहुँचा रहा होता. That is one. If I would have stayed back in Jammu, the answer to that is no. क्योंकि जैसे ही from the very beginning, right, आपके environment, everybody first of all wants you to get out of that. So वो बहुत important था कि आप इस सब से बाहर निकलो. That was very important, right from I was 4th standard 5th standard से ही आपको समझाया जाता था कि यार राहुल यहाँ जिंदगी नहीं है, जा बाहर जा. And that was one. 2 is अगर मैं वहाँ होता तो आई डोंट नो मैं क्या कर रहा होता, बट शायद मैं अपने मॉम डैड के बिजनेस के साथ ही होता. सो फ्रॉम देयर वेयर डिड योर फैमिली मूव? उसके बाद लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आए? एज अ किड में भी आपको तभी उतना इम्पैक्ट समझ में शायद नहीं आया होगा. लेटर ऑन इन योर लाइफ इट हैपेंस दैट यू फॉल बैक ऑन दैट, यू रिमेंबर कि अच्छा ऐसा हुआ था मेरी लाइफ में, एंड दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट हैज़ बीन इन माई लाइफ. सो वैसा कुछ हुआ आपके साथ? सो पूरी स्कूलिंग के टाइम पे व्हाट हैपेंड वाज, एवरी टाइम देयर वाज अ डिसीजन बिटवीन कि यार राहुल तेरे को बैट चाहिए या राहुल तेरे को बुक चाहिए. सो वाज बुक. आई डोंट नो, एक बहुत अच्छी स्टोरी है फॉर दैट मैटर. हर साल वी यूज्ड टू बी लाइक 5 किड्स इन द हाउस, और बुक्स को ना बाइंड करते थे. ठीक है, सो हमेशा वो बाइंड के लिए अगर आपको अपनी स्टोरी याद है तो ये आपके लिए वो नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है. बट उसके पैसे बचाने के लिए वी यूज टू, माई फादर, माई अंकल, दे यूज टू गेट टुगेदर, और सभी की बच्चों की बुक्स एक साथ बाइंड हुआ करती थी ताकि पैसे बच जाए हमारे. ठीक है, हालांकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन था बट मेरे पास कोई बैट नहीं होता था. मैं स्कूल नेशनल फुटबॉल खेला हूँ बट मेरे पास घर में कोई बॉल नहीं थी. दैट वॉज द अपब्रिंगिंग विद विच आई गॉट कि यार आपके पास रिसोर्सेज नहीं है
कोई बात नहीं, बाहर जाओ, कुछ करो, रिसोर्सेज मिल जाएंगे, देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु विल हेल्प यू आउट, कोचेज होते हैं, बहुत लोग होते हैं। तो वो एनवायरनमेंट काइंड ऑफ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि यार तुम लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर भी कैसे यू सर्वाइव, यू थ्राइव। Right. And you mentioned that if it was a choice between a bat and a book, you would have definitely picked a book. And my father would have picked the book. So tell me a little bit about the engineering decision that you have had. How did NIT come your way? कैसे हुआ ये? जब मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया तब एंट्रेंस एग्जाम wasn't AIEEE, आज AIEEE होता है, आई थिंक AIEEE 2005 या 6 में आया। तो मैं 2002 में इंजीनियरिंग करने गया था। तब स्टेट के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे, तो JK का अलग होता था। उसमें इट वॉज फेयरली ऑब्वियस, उस टाइम पे NIT वॉज इन श्रीनगर, तो कोई श्रीनगर जाता नहीं था ऑब्वियसली, एंड देयर वॉज हर स्टेट से कुछ कुछ नॉमिनेटेड सीट्स होती थी, एंड जनरली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज इफ यू आर टॉप 15 इन द स्टेट यू गेट अ गुड कॉलेज विद अ गुड ब्रांच, सो एज टू से। सो तो मेरा आई थिंक J&K स्टेट में 7वां नंबर था, तो इट बिकेम फेयरली ईजी फॉर मी कि यार टॉप NITs देखो कौन से हैं, जो पहले 6 लोग लेंगे उसको हटा दो, 7वां तुम्हारा नंबर है तो तुम्हें मिल जाएगा। आई वॉन्टेड टू स्टे क्लोजर टू होम। 2 बहुत अच्छे NITs हैं, एक हमीरपुर है, एक जलंधर है, तो मुझे पहाड़ों में रहना था तो मैं हमीरपुर चला गया। क्या किया पहाड़ों में जाके? पढ़ाई में मन लगता था या पहाड़ों की वादियों में घूमने का ज़्यादा मन लगता था उस टाइम? तो इंटरेस्टिंगली मैंने बहुत पढ़ाई की थी इंजीनियरिंग से पहले। इंजीनियरिंग मैंने कोई पढ़ाई नहीं की, इंजीनियरिंग मैंने एब्सोल्युटली कोई पढ़ाई नहीं की। कोई भी मेरे दोस्त इंजीनियरिंग के होंगे वो आपको बताएंगे कि राहुल को किताब के साथ देख लिया तो बहुत, मैं ग्राउंड में होता था। वहाँ ज़्यादा बैट चलती थी, बुक्स नहीं। वहाँ पे बैट चलती थी, बुक्स बिल्कुल नहीं चलती थी। नेचुरली मैं कॉम साइंस में बहुत इंटरेस्टेड आता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंटरेस्टेड आता था मेरे को बहुत ज़्यादा। अगर वैसा कुछ करना हो, किसी के रूम में करना हो, कुछ भी करना हो, तो वो वॉज ऑलवेज अहेड। उससे भी मेरा आगे का करियर काफ़ी शेप हो गया, वो मैं बताऊँगा आगे। बट ओवरऑल व्हाट हैपेंड वाज कि at that point of time, in those 4 years for that matter, suddenly I felt कि यार पढ़ाई करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, राइट? मुझे ऐसा फीलिंग आती थी कि पढ़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। समथिंग, एंड दिस वॉज वेरी रॉन्ग ऑफ मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड डू। बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए मेहनत के बगैर मिलना शुरू हो गई, ठीक है? वो जैसे पास हो जाना, नंबर आ जाना, मतलब ये कोई बड़ी बात थोड़ी, मतलब ये तो आ जाएंगे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली। वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी व्हेन आई मूव टू माय फर्स्ट जॉब एंड देन मूव टू IIM। वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। बट वन थिंग दैट आई अंडरस्टूड अबाउट माई सेल्फ वॉज कि आई डोंट लर्न फ्रॉम बुक्स, आई लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड मी एंड आई लर्न फ्रॉम डूइंग थिंग्स। और ये मैं बहुत पहले समझ गया था कि यार मैं ऐसा हूँ तो मुझे अपनी चीज़ें कैसे, अपना करियर कैसे शेप करना है उससे। तो कॉलेज में एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमीरपुर में I was always one who would be found in ground rather than one who would be found in class. सारे प्रोफ्स को पता था, मतलब कॉम साइंस कम्युनिटी बहुत छोटी थी, जैसे आपका डिपार्टमेंट बहुत छोटा होता था। मेरे डिपार्टमेंट में 10 प्रोफेसर्स थे जिसमें से 4 तो क्रिकेट में इंटरेस्टेड होते थे, तो राहुल क्रिकेट का मैच कब है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता था। तो दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। यू नो कॉलेज में एक रोमांस ढूंढते हैं और एक जॉब ढूंढते हैं। जॉब वाले सेक्शन में क्या हो रहा था? मतलब वाज इट क्लियर कि आपको क्या करना है? अभी ऐसे 3रा साल आ गया, 4था साल आ गया, कंपनीज आ रही हैं, वाज देयर एनी क्लैरिटी? हाँ, तो हमारे यहाँ 3-4 कंपनीज हमेशा आती थी उस टाइम पे, जिसमें से इन्फोसिस, विप्रो ट्रक भर के लेके जाती थी। बिल्कुल। मैं नेचुरली प्रोग्रामिंग में थोड़ा आगे था जनता से, नंबरों में पीछे था, बट प्रोग्रामिंग मेरे को आती थी। जिनके नंबर आते थे वो मेरे से अपना कोड लिखवा। हुआ क्या मेरे साथ कि यार मुझे पता था कि मैं किसी भी दिन यहाँ पे बैठूंगा तो मेरा हो जाएगा, मुझे कोई फाइट नहीं है। तो मैंने भी उसमें से एक बस पकड़ ली थोड़ी देर के लिए, वो मुझे छोड़नी पड़ी बाद में, जिसका नाम था विप्रो। तो उस बस में मैं बैठ गया जो आई कॉलेज में, जिसने 70 लोग उठाए, और मैं भी उस बस में बैठा हुआ पाया गया। तो मेरे लिए प्लेसमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, था कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा नहीं था। इट वाजंट दैट कि इट केम इजी फॉर मी, बट आई न्यू दैट because the placement is all about programming and I was somebody who was very comfortable with programming, I would get through. Right. So आप विप्रो गए फिर उसके बाद? मैं विप्रो गया, बट सिर्फ 2 महीने के लिए गया वहाँ पे। Right. तो हुआ क्या, इस बीच में मैंने इंटर्नशिप की थी विद अ कंपनी कॉल्ड ST Microelectronics, जो 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप्स होती हैं। तो मैं वहाँ पे जाता था, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की। तो वहाँ पे उन लोगों को मेरा काम पसंद आ गया। आई वॉज सपोज टू डू समथिंग जो कायदे से 6 महीने का काम था, वो मैंने हेडफोन लगा के 2 महीने में कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि प्रोग्रामिंग तो आती थी आपको? क्योंकि प्रोग्रामिंग आती थी, मतलब प्रोग्रामिंग एक्चुअली मैंने 11th स्टैंडर्ड से सीखी थी, तो आती थी। तो इट केम नेचुरल टू मी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वो कर लिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि चल यार अब तेरे को PPO दे देते हैं। एक तो विप्रो के लिए बैंगलोर जाना पड़ता, इसके लिए नोएडा में था, तो इट बिकेम प्रेफरेंस।
Right. So I worked with this company called ST Microelectronics for good 3.5 years. That has been my journey. बहुत इंटरेस्टिंग सा कुछ किया था आपने यहाँ पे, थोड़ा बताओ क्या था वो? आप सबको बोलते रहते हो, I've heard that हमने बहुत अमेजिंग चीज़ की थी वहाँ पे। तो मैंने क्या किया था वो मैं एक लाइन में सबको बताता हूँ जो सबको अच्छी लगती है। तो the chips I used to design with a company ST Microelectronics, it used to end up with the firms within the cars of Ferraris, Mercedes and BMWs of the world. So मैं चिप डिजाइनिंग करता था जो चिप्स वहाँ जाके पहुँचती थी। So जब आप ये कर रहे थे, did you feel like कि अच्छा this is exactly why I wanted to study hard, this is exactly what I wanted to do, मैं चिप्स बना रहा हूँ यहाँ पे जो ऑडी फरारी तक जा रही है, या फिर कोई और एस्पिरेशंस भी हो रही थी तभी कि अरे यार ये क्या कर? तो जब मैंने शुरू किया तो जब मैं कॉलेज में पहुंचा, मतलब फर्स्ट जॉब किया, तो उस टाइम पे बेस्ट सैलरी भी हो गई, तो आई थॉट दैट आई हैव अराइव्ड इन लाइफ। वो मिथ एक साल के अंदर टूट गई। उसके टूटने का एक ही रीज़न होता था कि मैं अपने क्यूबिकल से उठ के देखता था, करीब मुझे 80-90 लोग नजर आते थे। केबिन तो तभी मिला नहीं, केबिन नहीं मिला। तो क्यूबिकल से उठ के देखता था, मुझे 80-90 लोग नज़र आते थे सारे, जिन सबके उस टाइम पे बाल सफ़ेद होते थे और वो वही कर रहे होते थे जो मैं कर रहा होता था। नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, ऑब्वियसली दे लव व्हाट दे डू, बट मुझे लगता था कि मुझे ये 15 साल तक करना पड़ेगा। नहीं यार, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट टू डू। और उस टाइम पे वो एनवायरनमेंट और मेरे दोस्त उसके इर्द गिर्द के, दैट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ माई नेक्स्ट चॉइसेस। So what was the next choice? You thought that you have to upskill yourself, you have to learn now, and definitely engineering के बाद सबसे पहले एक ही चीज़ चमकती है, अभी MBA कर लो, है ना? कैट दे दो। हाँ, अभी कैट दे दो। कैट दे के फिर कहाँ क्रैक करेंगे देखेंगे, फिर वहाँ पे जाके MBA करेंगे। So what was that journey like? आपको किसी ने मोटिवेट किया to do this, या फिर you came across this, एक रात को सो रहे थे सपना आया? नहीं, तो there was a small group of friends जो हम 5 लोग इकट्ठे थे। हम एक जगह काम करते थे, बट we used to work in different departments within the same company, एक साथ रहते थे। उसमें से कुछ NIT के, कुछ IIT के, कुछ NSIT के लोग थे। 4 हम मेन दोस्त थे। उन दोस्तों में से एक जो था उसको MBA कहा थी, नहीं कुछ करना है करते करते कि MBA करना है। तो MBA became a theme and this was 2006-07. I wasn't certain. Right. I was trying to figure out कि यार मुझे क्या करना है। फिर थोड़ा सा भेड़ चाल हुआ, बट थोड़ा समझ आ गया कि कुछ करना है। एंड इन 1 year आई रियलाइज्ड कि चलो MBA पे सेटल डाउन करते हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है आपकी लाइफ में। और IIM इंदौर भी ऐसे और कोई ऑप्शन नहीं है में हुआ था, या फिर it was a choice? इसमें भी अच्छी स्टोरी एक्चुअली। तो उस टाइम पे क्या हुआ, what happened was these 3 buggers, friends of mine, we started preparing together, okay? We used to live in Noida at that point of time. तो क्या हुआ कि हम सब ना एक साथ तैयारी करते थे, और हम बहुत because of that environment that went, हम बहुत शिद्दत से तैयारी करते थे। मतलब हर सैटरडे को 2 मॉक टेस्ट देना, पढ़ते नहीं थे, मतलब पढ़ते थे बट 2 मॉक टेस्ट देना जो 2.5 घंटे के होते थे उस टाइम पे पेन एंड पेपर कैट होता था। 2.5 घंटे के वो टेस्ट देना 2 सैटरडे को। वो सैटरडे के टेस्ट मॉर्निंग में ख़त्म करने के बाद मैं नोएडा में रहता था। मेरी गर्लफ्रेंड जो अब वाइफ है वो गुड़गांव रहती थी। मैं वो करके बाइक पे आता था, डेट करता था, फिर वापस सैटरडे रात को जाता था। एंड एवरी वीकेंड वाज लाइक दिस। ये करने के बाद हमने 2009 का जब कैट दिया तो आई गॉट सम 97-98 परसेंटाइल, बट मेरा कहीं हुआ नहीं बिकॉज एक कट ऑफ रह गया था। बाकी तीनों का क्या हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी तीनों 99.5 प्लस थे तीनों, और बाकी तीनों में से एक वेंट टू अहमदाबाद, एक वेंट टू बैंगलोर एंड थर्ड वेंट टू लखनऊ। तो दैट वाज आई डोंट नो गुड और बैड फॉर दैट मैटर, बट आई रियलाइज कि ओ अब तो मैं अकेला रह गया। तो दे आर स्टिल फ्रेंड्स, दे आर गुड फ्रेंड्स, बट ओवरऑल ये नेक्स्ट 6 months मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट हो गए थे। कुछ डिफरेंस होता है क्या? वो IIM AB गए या फिर लखनऊ गए, आप इंदौर में गए, डज दैट मैटर? इन शॉर्ट टर्म मे बी येस, in long term no, that's a short and sweet answer for you, but important ये है कि हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है। हर एक की जर्नी में बहुत सारे ऐसे डिसीजन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे यू आर फोर्स्ड टू थिंक एंड टेक अ चॉइस, मेक अ चॉइस फॉर दैट मैटर। और वो चॉइस में कभी कभी आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। अहमदाबाद का मेरे पास नहीं था, सच बोलूँगा। मेरे पास इंदौर और थोड़े से और ऑप्शन थे, बट ओवरऑल इफ आई थिंक नाउ, इट हैज़ बीन 10 years, बट आई थिंक ठीक है, लॉन्ग टर्म में इट डजेंट मैटर। IIM एज सच क्या देता है उसके बारे में बात करूंगा, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में आई डोंट थिंक इट मैटर्स। करेक्ट। और
IIM इंदौर में जब आप गए, so what was it like? Like यहाँ बुक से रिश्ता था आपका या फिर अगेन बैट लेके चले गए? तो मैं बैट लेके नहीं चला गया, मेरे पास और हॉबीज़ आ गई थी लाइफ में, काफ़ी अच्छी हॉबीज़ हुई थी। IIM इंदौर में एंड टिपिकली IIM में if you understand, मेरे लिए लर्निंग was not in the class. Learning was with peers. As it always was. I mean, as it always was, which I was very clear कि मुझे top 1% of the students में नहीं आना है. I was very clear about that. Right, the time I entered, I was very clear कि मुझे नहीं topper बनना है. मुझे there was very common thing कि यार जो top 1 या 2% of the batch में आता है वो BCG या इन सब में चला जाता है. It became a very common thing. तो मुझे नहीं आना है, मुझे नहीं जाना वहाँ पे. I was very clear. तो I learned a lot, but it never happened by reading books. It never happened by attending a lecture. It happened with peers. वहाँ पे जो common learning peers के साथ हुई, जो common case studies होती थी, या फिर हम मेस में बैठ के कुछ बातें कर रहे होते थे about I don't know कुछ भी industry या something like that, with seniors for that matter, उनके साथ उनका exposure, वैसे learning was way bigger than anything that could have happened for me at least, than any lecture room or with any professor. आपने बोला टॉप जो 1% होते हैं वो BCGs में जाते हैं, कंसल्टिंग फर्म्स में जाते हैं. आप भी गए ना? आप गए कॉग्निजेंट में, आपने कंसल्टिंग किया. हाँ. सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? आई मीन व्हाई डिड यू चूज कॉग्निजेंट? डिड यू चूज कॉग्निजेंट या फिर वो प्लेसमेंट वाला तो गेम हो गया? उसमें भी एक स्टोरी है. I was left with the best worst option that I had. Best worst option. Yeah. Okay. I got a PPO from a firm called Aviva Life Insurance. So मैंने जब इंटर्नशिप हुई थी तो मैंने अवीवा में यहीं गुड़गांव में इंश्योरेंस की थी. तो मैं इंश्योरेंस में एक बैंक का इंश्योरेंस होता है जो बैंक चैनल्स के थ्रू बेचते रहते हैं, और उसमें से भी रूरल इंश्योरेंस होता है. रूरल इंश्योरेंस मतलब गांव-गांव में जाके बेचना होता है. बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, बट उस टाइम पे अभी भी है शायद, हर इंश्योरेंस कंपनी की कुछ सर्टेन नंबर ऑफ इंश्योरेंसेज रूरल एरिया से आनी चाहिए. उस टाइम पे वो 19% था, अब मुझे नहीं पता कितना है. तो मैं इंश्योरेंस में रूरल एरियाज़ में बहुत गया, महाराष्ट्र में, बिहार में, बहुत रूरल एरियाज़ में ट्रैवल किया मैंने उस टाइम पे. जो 2 महीने की इंश्योरेंस थी उसमें से 1 महीना मैं लगभग बाहर था, और जनरली मैं किसी इंश्योरेंस एजेंट के साथ जाके गांव में प्रॉपर जाके वहाँ देख रहा होता था. उसमें मुझे क्या समझ आया कि एक तो बेच रहे हैं इंश्योरेंस, ठीक है, वो बेच नहीं रहे थे, वो चिपका रहे थे इंश्योरेंस रूरल किसान को. अब हो कैसे रहा था मुझे पता नहीं, मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि नहीं, बट मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा प्लीज कि वहाँ पे क्या होता था कि वो उनको इंश्योरेंस बेचनी होती थी किसान को, ठीक है, एक सिंपल किसान को अपने इंश्योरेंस बेचनी है. तो किसान डिपेंड करता है बैंक मैनेजर पे कि मुझे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा. उसके लिए लोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे. बैंक मैनेजर इसका फ़ायदा उठाता है वहाँ पे. बैंक मैनेजर क्या कहता है, चल मैं तेरे को 1 लाख का लोन दिलाऊंगा लेकिन तू मुझे 10,000 रुपये देगा, ठीक है. उस टाइम पे ये बहुत होता था. अब बैंक मैनेजर क्या बोलता था, ये लोग क्या करते थे, इंश्योरेंस वाले जाते थे बैंक मैनेजर के पास. हर गाँव में यही सीन होता था. बैंक मैनेजर के पास जाते थे, बैंक मैनेजर बोलता था कि आप मेरे को 10,000 रुपये तो दो ही दो, और साथ में इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा आपको. तो उनके लिए इंश्योरेंस की कोई वैल्यू नहीं थी, वो ऐसे ही ले रहे थे. और ये मिस सेलिंग देख के उस टाइम पे 2011 में मैंने कहा कि मुझे अवीवा नहीं जाना है. एंड आई वॉज ट्राइंग टू स्टॉप कियर, मेरे को PPO ना मिले उस टाइम पे. किसी तरीके से मुझे PPO रोक दो, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है चाहे जो मर्जी हो जाए. और अल्टीमेटली सो दिस इज हाउ इट हैपेंड. हम सब लोग 10-15 लोग बैठ के पोकर खेल रहे हैं और मुझे फ़ोन आता है कि राहुल तेरा PPO आ गया है. सारे 10 लोग कॉन्ग्रेचुलेट हो रहे हैं और मैं ऐसे यार ये क्या हो गया, ओ शिट. मतलब आई वाज लाइक ओ शिट, और 10-11 लोग मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं. तो दैट वाज माय फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन वाज, हम ये बी स्कूल में बहुत इवेंट्स होते हैं, तो हमने, मी और कपल ऑफ माय फ्रेंड्स, वी पार्टिसिपेटेड विद कॉग्निजेंट. सो कॉग्निजेंट का बी स्कूल था, इवेंट था, तो हमने पार्टिसिपेट किया. फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकंड राउंड क्लियर किया. तो जो उनका लास्ट राउंड था, दैट वाज ओनली विद आई थिंक 3 पार्टिसिपेंट्स केम, 3 teams actually, me, my friends, and couple of other. One was from I think IIM Bangalore, other was from NSIT, and जो भी था SP Jain, and third was us. So they gave all the 3 teams PPOs. Right. तो मुझे पता था कि मुझे कॉग्निजेंट में जाना नहीं है, लेकिन मुझे अवीवा में भी नहीं जाना था. So चॉइस करनी थी फिर आपको. चॉइस करनी थी उस टाइम पे. तो फिर कॉग्निजेंट केम, तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई फॉर अ ईयर. कॉग्निजेंट पे मैं जब भी जाता था ऑफिस, होता क्या है कि कॉग्निजेंट कैसे काम करता है कि कॉग्निजेंट आपको बिलेबल बना के कस्टमर से आपके घंटे के पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है. तो दिस इज सिंपल मॉडल, दैट इज हाउ सर्विसेज बिजनेस वर्क. सो अगर आप बिलेबल नहीं हो तो आप नॉन बिलेबल हो. तो
नॉन बिलेबल हो तो आप कुछ कर नहीं रहे हो, तो मैं बिलेबल तो हो जाता हूँ, बिलेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे। तो मैं एक न्यूयॉर्क के बैंक के साथ मेरा प्रोजेक्ट शुरू हो गया, ठीक है। मैं आई वॉज हैप्पी कि यार चलो देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या है। आई रियलाइज्ड कि मेरे पास 10 घंटे में से 1 घंटे का भी काम नहीं है। और वहाँ पे मेरे को एक क्यूबिकल मिल गया था, तो मैं आता था 10 बजे, फिर मैं सोचता था कि मुझे क्या करना है। वो सोचते सोचते 10-11 बजे तक मैं बना लेता था। फिर उसके बाद मैं चाय पीने जाता था, उस टाइम मैं स्मोक भी करता था, सुट्टा भी मारता था। तो आई यूज्ड टू गो आउट, कम बैक एंड देन से अभी करूँ क्या, नहीं रुक जाता हूँ थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर और कुछ कर लिया एंड देन कुछ भी ब्राउजिंग कर ली एंड देन केम बैक एट अराउंड 2 to 3 में 1 घंटे का काम था, वो आधे घंटे में खत्म हो जाता था। तो अब क्या करूँ? फिर शाम को एक कस्टमर कॉल होती थी 6 बजे और 6-6:30 जब भी उनका सुबह होता है, एंड आई यूज्ड टू फिनिश दैट बाय अराउंड 7 एंड देन घर जाओ। तो दिस वाज माय वर्क एंड आई डिड सम कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स जहाँ पे मैं बिजी भी रहा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कर रहा था। देयर वर लॉट ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड ओवर देयर वेयर आई वाज shadowing some very senior consultants who were doing some really good job, but overall मेरी जिंदगी ऐसे चल रही है। But is it the reality with anybody and everybody who is going into a consultant from right after? Not really. So first of all, people are doing good job over there. A lot of people, because consulting works with projects, and when my friends are with these projects, they spend sleepless nights. 20-22 घंटे काम करते हैं वो लोग, मुझे पता है। जब डिलीवरी देनी होती है कस्टमर को, when they work for that 3 week या 4 week या 6 week का टाइम, तो वो लगातार काम कर रहे होते हैं। उस टाइम पे तो ना दिन होता है ना रात होता है। Right. So at what point did you think that enough is enough of Cognizant experience? अब ये हो गया, मन भर गया? 9-10 months in the role, I started exploring कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, and I started exploring options कि what is out there, what can I do, how do I make my previous experience, which was with ST Microelectronics at that point of time, how do I also make sure कि that is worth, because that was really good experience that I had. मैं coding ही करता था at the end of the day, but वो experience, understanding कि वो पूरा embedded chip designing का ecosystem कैसे काम करता, that was useful experience. What was that company that you decided that you want to go ahead with? Amio is something where you have spent a considerable amount of time in your life also, right? What was that company like? Exactly क्या करने के लिए आप वहाँ पे गए थे? And how did that pan out for you? Interesting. So when I was moving out of Cognizant, I actually had an option to move to London. तो मेरे पास वो ऑप्शन था, मैं वो नहीं करना चाहता था। फिर मेरे पास क्यों आपको लंदन क्यों नहीं जाना था? मुझे लंदन जाना था, मुझे वो काम नहीं करना था। ओके मुझे वो काम नहीं करना था। अब वो यहाँ करो, लंदन में करो, ब्लडी जहाँ मर्जी करो, क्या फ़र्क पड़ता है, करना तो वही है। मुझे वो काम नहीं करना था। तो what happened was, at that point of time, e-commerce had started to come up. 2013-ish, 14 beginning, e-commerce had started to come up, और मुझे उसमें से कुछ ऑफर्स आने लगी, ठीक है। But I interviewed with a company called Ameo, which he said, 2 चीज़ें मुझे बहुत सही लगी। एक तो वो सॉफ्टवेयर कंपनी थी, and a lot of it that they used to do was tech, not consumer tech, but actually tech. तो I could somehow relate, not exactly relate, but somehow related to my experience that I had. वो एक्सपीरियंस एक्चुअली मुझे हैंडी आया उस टाइम पे, तो दैट इज़ 1. 2, फाउंडर्स से मिलके एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हैड 3 rounds of interview, if I remember, 1 with HR and 2 with 2 founders of that company. वो at that point of time, that company was profitable. That company was I think 3-4 years old, and the experience that I had of those interviews, 4 घंटे के जो interviews चले मेरे, मुझे लगा कि यार ये this is something interesting. And I liked the people. तो मैंने कहा यार ये this is something that I want to do, and I just packed my bags and from Chennai, and I moved to Gurgaon. Right. So then you come back to Delhi, your own place. You Yes. know this place quite well, and then you join this company. What was the role that you took up first in this company, and what sort of things that you were developing from there on in your life? Interesting. So you would have heard these stories a lot कि जब आप स्टार्टअप पे काम करते हो, आपका काम बहुत अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है, और यू एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स देन व्हाट यू आर डूइंग। सो अमियो में आया, सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद द CEO. आजकल ऐसे रोल्स बहुत कॉमन हो गए हैं विद designations like chief of staff, designations like founders office, CEO's office, ये बहुत कॉमन हो गए हैं। तो मैं उस टाइम पे वो रोल करता था, हमें पता नहीं था वो रोल है क्या, उसकी डेजिग्नेशन क्या बोलते हैं। तो उन्होंने कहा तुझे क्या डेजिग्नेशन चाहिए, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी सीम समथिंग नाइस, तो तू रख ले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी डेजिग्नेशन, तू काम कर। तो जब मैं आया वहाँ पे, तो
I was working very closely with CEO. So founder's office is the best education that you can get. उस टाइम पे आप बहुत क्लियरली देख पाते हो कि एक फाउंडर कैसे ऑफिस ला रहा है, बट आप खुद फाउंडर नहीं हो, बस वो एजुकेशन है आपके लिए बहुत बड़ी. सो वो 3-4 साल नेक्स्ट में फाउंडर के साथ क्लोजली काम कर रहा था, बट इवेंचुअली वो रोल ऐसा था, वो रोल डिफाइंड नहीं था. बट आई वॉज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच वर अनस्ट्रक्चर्ड इन नेचर, प्रॉब्लम्स विच वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर अनस्ट्रक्चर्ड इन नेचर. तो दिस बिकेम वेरी कॉमन, बाय द वे. आई कैन टेल यू लॉट ऑफ स्टोरीज, बट ओवरऑल थीम वॉज कि जो काम अमेयो में कोई नहीं करता वो रुचि करता है. This is something that you told me. ये क्या था, मतलब मुझे समझ नहीं आया. जो काम कोई नहीं करता वो रुचि करता. कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो एक दिन अचानक से मार्केटिंग हेड लेफ्ट, 4 लोगों की मार्केटिंग टीम होती थी लेफ्ट. अरे राहुल को बुलाओ यार, राहुल संभालेगा. अरे राहुल संभालेगा, अच्छा ठीक है. तो अब देयर वाज अनदर थिंग व्हिच केम अप, आई रिमेंबर. अरे सपोर्ट के प्रोसेसेस में अचानक से बहुत वॉल्यूम हाई हो गया है, कौन संभालेगा? अरे राहुल देखना यार. तो फंडिंग रेज करनी है, अरे कौन बनाएगा डेक? कल सुबह डेक चाहिए. रात को 8 बजे फाउंडर के कल सुबह 9 बजे इन्वेस्टर को प्रेजेंटेशन देनी है. मैंने कहा अच्छा ओके, सोचता हूँ मैं क्या करता हूँ. तो दीज आर द थिंग्स विच रिमेंबर, विच इज द राइट education that happened with me without even me knowing at that point of time. But I do appreciate that education a lot today. Those problems were a lot unstructured problems. I took those decisions. Those decisions went right, those decisions went wrong. तो founders के life में ऐसा सब कुछ sweet नहीं हो रहा होता है, सब कुछ सही नहीं हो रहा होता है. आप बहुत सारी चीज़ें गलत करते हो, कोई प्लेबुक नहीं होती, कुछ नहीं होता. बट आई हैड बैकिंग ऑफ माई फाउंडर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि कुछ नहीं यार, गलती हो गया ना, कोई चक्कर नहीं, दैट्स ओके. सो दैट एजुकेशन एंड दैट बैकिंग दैट आई गॉट फॉर नेक्स्ट 2-3 years was a lot of unstructured problems, a lot of scaling, creating teams. जो टीम्स मुझे किसी और को हैंड ओवर करनी थी, मैं वो टीम्स क्रिएट कर रहा था. मैंने मार्केटिंग टीम बनाई और फिर किसी और को हैंड ओवर की. मैंने प्री सेल्स टीम बनाई और फिर किसी और को हैंड ओवर की. मैं CEO के लिए, CEO एंड फाउंडर्स ऑफिस के लिए फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू कर रहा था. तो मेरे फर्स्ट 1 साल में ही मुझे, मतलब आई थिंक मैंने 700-800 इंटरव्यू कर डाले होंगे लोगों के. तो आई बिकेम अ स्क्रीनर कि यार राहुल को दे दो. तो जो काम कोई नहीं करता राहुल तो जो काम कोई नहीं करता राहुल कर लेता है, वॉज अ कॉमन थीम. आई लर्न अ लॉट. मार्केटिंग सीख ली. पहले बोला यार राहुल मार्केटिंग देख ले. तो आई सेड कि अच्छा चलो ठीक है देखता हूँ. तीसरे दिन मुझे पता चला मार्केटिंग में पेड में 1 महीने का कुछ पैसा खर्च होता है. मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ जाता है? वो एजेंसी हैंडल करती है. एजेंसी को बुलाया. तो क्या करते हो? अरे इसका कुछ ROI नहीं है, एजेंसी फायर. अगले दिन मैंने आई डिडंट ब्लिंक एन आई. आई सेड, आई वेंट टू माई CEO's ऑफिस. आई सेड ये पैसा खर्च हो रहा है, ये बकवास है, हटाओ इसको. ही सेड ओके कर दे जाके. मैं गया उसके ऑफिस में, मैंने बोला सर प्लीज दिस इज नॉट वर्किंग आउट, थैंक यू सो मच. मैं रिस्पेक्टफुली बोला यार, ऐसे नहीं बोला. बट ऐसे थैंक यू सो मच बोलने के बाद एक और एजेंसी हायर भी तो करनी पड़ेगी. नहीं, I mean, फिर क्या किया आपने उसको? हाउ डिड यू हैंडल दैट? आप देखोगे कि ओके, हियर इज हाउ यू विल हैंडल इट. यू विल रियलाइज दैट वेदर दैट स्पेंडिंग दैट इज हैपनिंग, इज इट क्रिएटिंग अ ROI. सो एज अ बूटस्ट्रैप्ड कंपनी आई वाज फोकस्ड ऑन ट्रांजैक्शनल प्रॉफिटेबिलिटी कि यार आप जो पैसा डाल रहे हो उसका ROI आ रहा है कि नहीं आ रहा है. दैट ROI एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज नीड और नॉट. ठीक है ना? वही पैसा कहीं और खर्च कर सकता हूँ मैं, वही पैसे का एक रिसोर्स ला सकता हूँ मैं, वही पैसा इवेंट्स में डाल सकता हूँ मैं, वही पैसा कहीं और खर्च कर सकता हूँ. राइट? जरूरी नहीं है कि मुझे दूसरी एजेंसी लानी है. It can be a channel that is good for me, or for that matter मैं sales का बंदा ले आऊँगा यार. So I picked and saved some money out of it. I still was doing spending some money on paid, which I was managing myself. Paid manage करना उस टाइम पे इतना टफ नहीं होता था, तो वो भी सीख लिया यार. मुझे वो फील बहुत बार आती थी जब मैं इनिशियल स्टार्टअप में करता कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, बहुत बारी फीलिंग आती थी ऐसी. एवरी टाइम आई यूज्ड टू रिमाइंड माई सेल्फ एंड आई वाज़न्ट अर्निंग. वैसा नहीं कि वो लोग बहुत ज़्यादा अर्न करते थे, मैं शायद उनका आधा भी नहीं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट द प्रॉब्लम्स दैट आई वाज सॉल्विंग एट दैट पॉइंट, द एक्सपोजर दैट आई वाज गेटिंग, द किक दैट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ दैट एक्सपोजर वाज माइंड बॉगलिंग. ऐसा कौन सा रोल होगा जो आपसे एक दिन मार्केटिंग कराएगा, अगले दिन सेल्स कराएगा, पिछले दिन सपोर्ट के प्रोसेस ठीक कराएगा और ब्लडी एक दिन कोड भी लिखवा देगा? तो वो भी कर लिया. You must be thinking another pre-roll? Wait, let me just skip it. With Altuni, there are some boring things which you can avoid, like the long wait for promotions or increments, or the numerous interviews before you land your dream job. At Altuni, we make sure that you're future ready and skilled to be in the top 0.5% class. Click on the link in the description now.